the very first part of it is using a current carrying conductor. The current for expression that we are going to use is NAQV. N is the number of charges. A is area of the conductor. V is the drift velocity. And Q is the charge on the charge of electron भी आप कह सकते हैं simply because electron ही moving particle होते हैं उसकी value होती है 1.6 × 10⁻19 coulomb. Drift velocity is the concept that you're going to study for the first time. Drift velocity is the maximum speed of electron in या directional motion of the electron भी हम कह सकते हैं in a particular direction when source of current is attached. That means if I have this conductor, it would have so many electrons going in random directions. Okay? Whenever I touch a conductor, I would never feel an electric shock because the fields are being cancelled. Fields जो है वो क्या हो जाएंगी? Cancel out हो जाएंगी because they're going in random directions, so they would cancel out the fields of each other. Whenever it is attached to a source of current, so source of current पे attach होने में all the electrons now will be moving in the same direction. So now the velocity with which these electrons are moving in a particular direction is known as drift velocity. Normally electrons जो है with the speed of light move कर रहे होते हैं, but under the influence of source of current, they are a few kilometers per second की speed हो जाती है, and that speed under the influence of a source of current is known as drift velocity. That is something new for you. बाकी the remaining topics में you're familiar with some of it at certain levels. Okay, then you know this formula आप लोगों ने 10th में किया हुआ. EMF or potential difference is defined as the work done per unit charge. ठीक है? EMF और potential difference में क्या होता था? EMF was the energy utilized by the charge to go through the whole circuit, whereas potential difference क्या होता था? Is the energy utilized by the charge to go through one component only. Have you guys read about EMF and potential difference in the previous class? 10th में I guess पढ़ा हुआ आप Yes, लोगों ने. sir. ठीक है, तो उसका वही फॉर्मूला ने रिपीट किया हुआ है. पावर इज इक्वल टू वी आई, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. ओके, Yes, sir. ये नहीं पढ़ा हुआ? नहीं सर, पढ़ा था ब्रीफली इसका. अच्छा, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ. यहाँ से वोल्टेज पावर किसके इक्वल होता है? वर्क डन ओवर टाइम के, जो हम लोगों ने एनर्जी वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा हुआ है. अगर मैं इसी क्वेश्चन को रीअरेंज करूँ तो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा? V इंटू क्यू के. इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो पावर वुड बी इक्वल्स टू V इंटू क्यू ओवर टी. तो Q ओवर टी किसके इक्वल होता है? करंट के. तो पावर किसके इक्वल आ जाएगा? पावर वुड बी इक्वल्स टू VR. एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है? IR. तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगा यार बन जाएगा I स्क्वायर R. और अगर I को पुट करूंगा वो किसके इक्वल होता है? V ओवर R के. तो क्या बन जाएगा? V स्क्वायर ओवर R. एंड द सेम फॉर्मूला. देन रेजिस्टेंस के इस फॉर्मूला से भी आप फेमिलियर हो गए. Resistance is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to area. The new term that you're going to study is the resistivity. Have you guys studied about resistivity before? सर याद नहीं मुझे. Resistivity is basically which depends on the property of the substance. ठीक है? If I have two wires both made up of copper but they have different length and area, what will they have in common?
the resistivity, because resistivity depends only on the medium of the substance. It's ओम पर मीटर, इसको mho भी इसका यूनिट होता है, जो हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे भी. Next is state that the resistance of light dependent resistor decreases as the light intensity increases. We know that कि दो resistors होते हैं जो negative temperature coefficients होते हैं. One is LDR and one is thermistor. When the light intensity on the LDR would be increased, उसकी resistance क्या होगी? Decrease. और जब light intensity decrease होगी तो resistance की क्या होगी? Increase होगा. तो LDR की resistance जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाइट इंटेंसिटी के, 1/, लाइट इंटेंसिटी के. तो लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या करेगी? डिक्रीज. लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा? इंक्रीज. बेसिकली होता ये है कि दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल. तो जब लाइट एज अ वेव उसके ऊपर फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है. तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? लो हो जाती है हमारे पास. Both in thermistors and LDR. You're familiar with hole now? What is hole? No? सर बता दें कुछ थोड़ा इसके बारे में. इलेक्ट्रॉन जब अपनी 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 लोकेशन को लीव करता है तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां पे जो क्रिएट होता है दैट इज नोन एज होल. इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज यस सर. एंड इसकी इंटेंस जो पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है हमारे पास. Next is define and use the electromotive force as a source of energy transfer per unit charge around a complete circuit. मैं ये आपको पहले ही करवा चुका हूँ. EMF and potential difference भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. EMF and potential difference में क्या difference है? कि one is the energy utilized to go through the whole circuit and one is the energy utilized to go through one component only. ठीक है? Then इस level पे आके we would also discuss about the internal resistance which is being offered by the battery. अभी तक हम लोगों ने बैटरी की रेजिस्टेंस को डिस्कस नहीं किया था. From now onward we are going to discuss the internal resistance of the battery as well. पोटेंशियल डिफरेंस, उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का भी एक टर्म होगा हम लोगों के पास. इंटरनल रेजिस्टेंस को भी डिस्कस करेंगे. द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर दैट इज E, which is EMF of the battery, is equals to IR plus IR. This accounts for the internal resistance of the battery, and this accounts for the potential drop across the component. Okay. Then we're going to discuss Kirchhoff's first law and Kirchhoff's second law. Kirchhoff's first law depends on the conservation of charge and Kirchhoff's second law depends on the conservation of energy. What is Kirchhoff's law? उसमें हम डिस्कस करेंगे. Kirchhoff's law जो है बेसिकली यूज किए जाते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किटरी. कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम्स को सॉल्व करने के लिए फॉर द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज वी टेक हेल्प फ्रॉम Kirchhoff's law. Kirchhoff's law जो first law है that mostly deals with the current, complex circuitry के अंदर currents को कैसे solve करना है, और जो Kirchhoff's का second law है that deals with the voltages को हमने कैसे deal करना है उसके अंदर. ठीक है. And again series and parallel circuits के अंदर Kirchhoff's law को हम use नहीं करते हैं. हम use करते हैं when it's beyond parallel and series की combinations बनते हैं तो वहां पे हम किरचॉफ्स रूल को, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स बनते हैं, वहां पे वी अप्लाई किरचॉफ्स लॉ. ठीक है. बाकी सीरीज एंड पैरेलल की रेजिस्टेंस के फॉर्मूलास तो आपको याद होंगे. सीरीज में क्या होता था? सिंपली आप ऐड कर देते थे. पैरेलल में आप क्या करते थे? 1/R के इक्वल होता था. 1/R. सीरीज के अंदर करंट की वैल्यू क्या होता था? सेम. तो आई टोटल करंट सेम रहता था. इसमें टोटल करंट क्या होता है? ऐड करके फाइंड आउट किया जाता है. ऐड होता है. इसमें वोल्टेज ऐड होती है, उसमें वोल्टेज सेम रहती है. ठीक है.
फिर ड्राइव एंड अप्लाई Yes, अ sir. फॉर्मूला फॉर द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू और मोर रेजिस्टेंस इन पैरेलल, वो हमने डिस्कस कर लिया। किरचॉफ्स लॉ टू सोल्व सिंपल सर्किट डायग्राम, तो जब हम किरचॉफ्स लॉ को पढ़ेंगे तो वहां पे हम फर्स्ट एंड सेकंड लॉ की एप्लीकेशंस एंड इक्वेशंस की डेरिवेशंस कैसे होती है वो कर लेंगे। पोटेंशियोमीटर के अंदर हम लोग लॉ अप्लाई करेंगे। पोटेंशियोमीटर बेसिकली अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सर्किट विद ग्रेटर एक्यूरेसी एंड चीपर मेथडोलॉजी के थ्रू हम लोग, अगर हम एग्जैक्ट वैल्यूज को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो पोटेंशियोमीटर का बेसिक रूल ये होता है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, दैट इज इफ एरिया इज कांस्टेंट, तो लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। हम इन फॉर्मूलाज को यूज करते हैं एंड सेम गोज फॉर द ई। ठीक है, वो फॉर्मूलाज होते हैं उनके हम डेरिवेशंस करेंगे, जो बेसिकली हम गैल्वेनोमीटर के नल मेथड के थ्रू फाइंड। बेसिकली जब हम किरचॉफ्स रूल्स को डिस्कस करते हैं तो हम नल मेथडोलॉजी के थ्रू अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसकी हेल्प से हम लोग ये होता है बेसिकली गैल्वेनोमीटर नल मेथड में ये होता है कि द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज वर्किंग, बट galvanometer is showing zero reading. That is galvanometer null method. उसके जब when we achieve that point, when the circuit is working, the circuit is on, the current is flowing through the circuit, but हमने resistances को इस तरीके से मैनेज कर दिया है कि galvanometer is showing the zero value। उस पॉइंट पे आके हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसके थ्रू हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हम पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूलाज भी पढ़ेंगे यहाँ पे। पोटेंशियल डिवाइडर के फॉर्मूलाज डिफरेंट होते हैं, पोटेंशियोमीटर के फॉर्मूलाज डिफरेंट होते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस के फॉर्मूलाज डिफरेंट होते हैं। मे बी वो सारे इन क्वेश्चंस के अंदर आए, सॉरी इन सब टॉपिक्स के अंदर आए। विल गो थ्रू दैट इंडिविजुअली। देन एक्सप्लेन द यूज ऑफ थर्मिस्टर एंड लाइन डिपेंडेंट रेजिस्टर्स इन पोटेंशियल डिवाइडर, वो फिर हम फॉर्मूलाज करेंगे तो विल गेट थ्रू दैट एज वेल। एक्सप्लेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स एंड इन कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द एक्सटर्नल सर्किट। इसमें बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे पावर आउटपुट होती है हमारे पास, मैक्सिमम पावर आउटपुट, दैट वुड टेल अस that the power output of the circuit, yeah, maximum power output is independent of the internal resistance and only depends on the resistance of the circuit के ऊपर सिर्फ डिपेंड करी होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस उसके अंदर कोई रोल नहीं होता है हमारे पास। then we have explain how inspectors can easily check the reliability of a concrete bridge with carbon fibers as fibers of electricity. We know graphite could conduct electricity. It's also non-reactive electrodes होते हैं, तो हम उनको किस तरीके से अपनी वर्किंग के अंदर यूज करते हैं। So that would be the thing that we're going to discuss in this chapter. This is what drift velocity को उसने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि before applying the source of current, all of the electrons are moving in random directions, but once the source of current is connected, electrons have a certain direction and the velocity of that electron is known as drift velocity. Before that, they are approximately moving with the speed of light, but source of current के साथ see यहाँ लिखा हुआ है कि the concept of drift velocity cannot be described without the presence of an external circuit. The average value of Fermi velocity of electron value missing है, but 10 to the power 6 जो है वो आ रही है, does not depend upon the current and applied voltage, while the drift velocity is 10 to the power of -4 में होती है। Fermi velocity बेसिकली वो velocity होती है तो विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड होती है। अब इसने एरोहेड्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं, वही आपको याद है ना, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था। एक कन्वेंशनल करंट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और करंट की डायरेक्शन हम हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ऑपोजिट टू दैट ऑफ द फ्लो। तो वही उसने यहाँ पे दोबारा से डिस्कस किया हुआ है। ओके, Yes, sir. अच्छा जी। Next one, the formula Yes, sir. discuss किया कि drift velocity is also given as mobility into electric field. Mobility basically is equals to velocity per unit electric field होता है। V जो है वो velocity जो है measurement of magnitude of the velocity को indicate कर रहा होता है when
जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर जो वेलोसिटी उसकी भी होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आता है। तो यहाँ से मोबिलिटी को अगर हम चेक करें तो मोबिलिटी बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओवर ई होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था, किसके इक्वल होता है, I इज इक्वल्स टू एन ए क्यू वी। तो वी किसके इक्वल आ जाएगा, I ओवर एन ए क्यू के। तो हम उसकी वैल्यू पुट करके वी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मोबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए मोबिलिटी बेसिकली जो होती है इट्स वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो वहां से हम लोग जो है उसकी मोबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, और मोबिलिटी बेसिकली गिव्स अस द measurement magnitude of the drift velocity of charge carriers per unit electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो बेसिकली डिपेंड करती है पोटेंशियल डिफरेंस एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, whereas फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल n जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। a इज एरिया ऑफ द कंडक्टर, l इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। तो समथिंग डिवाइड बाय वॉल्यूम इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज डेंसिटी। तो इफ इट्स फॉर चार्ज तो उसको हम क्या कर देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो NaL। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ फोर्स पर यूनिट चार्ज होता था। यहाँ पे हम उसको डिस्कस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से। तो हियर इट्स इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस डिवाइड बाय द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो जब हम इनको कंपैरिजंस करते हैं, यहाँ पे उसने दोबारा डिस्कस किया हुआ है कि n इज इक्वल्स टू electron density into area into length of a conductor. If charge on an electron is E, then the quantized charge is Ne। क्वांटाइजेशन का आपको पहले भी हमने डिस्कस किया था। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि चार्ज की एक फिक्स वैल्यू होती है और किसी भी एटम के ऊपर उसकी क्वांटाइज्ड वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, उसकी कोई रैंडम वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल 2 इंटू ई वैल्यू होगी, 1 इंटू ई वैल्यू होगी, 3 इंटू ई वैल्यू होगी, बट नो अदर वैल्यूज देन दैट। मतलब 1.5 या 2 या 2.5 इस तरह की वैल्यूज नहीं होंगी, क्वांटाइज्ड वैल्यूज होती हैं हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला किसके इक्वल आ जाता है, आई ओवर एन ए ई के इक्वल हमारे पास आता है। और अगर हम करंट डेंसिटी जो है उस इट्स आल्सो गिवन एज एन ई वी की इक्वल, एन अगेन नंबर आ जाएगा, ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड वी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे हमारे पास उसके इक्वल भी आ सकती है। एंड फर्दर उससे कॉम्प्लिकेट ही किया हुआ है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। वही दो फॉर्मूलाज हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं, और ये दो फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन एज v इनटू मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मोबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओवर e। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम I ओवर एन ए क्यू का फॉर्मूला यूज करते हैं। वी कैन नॉट, ये हमें जब तक कंडक्ट ये कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ती हैं थ्रू अ सर्टेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंडक्टर। तो हमें n की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। n की वैल्यू अगर आपको याद होगा, q इज इक्वल टू एन ई के इक्वल होता है। अगर हमारे पास चार्ज उसने दिया हुआ हो तो हम उसको डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन से हम नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं जिनके थ्रू हम लोग जो है इन सबको कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको हम फॉर्मूला